اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ سے مخاطب ہے۔ بات کریں گے سپریم کورٹ ارشد شریف مرڈر کیس کے حوالے سے، اور جو انتظامیہ ہے، حکومتی کارندے ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں، اور ارشد شریف کی فیملی کے حوالے سے اور اس کے دوستوں کے حوالے سے، جن کو بہت ساری معلومات ہیں اس حوالے سے۔ ناظرین، بہت خوبصورت فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان کا، جو بالآخر 2-2.5 مہینوں بعد انہوں نے ارشد شریف کے قتل کے لیے سو موٹو ایکشن لے لیا، اور اس سو موٹو ایکشن کے تحت حکومت کو بڑے واضح پیغام دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور پھر 5 رکنی بینچ، جس کا حصہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں، کہ ارشد شریف کے قتل کی FIR درج پاکستان میں کی جائے۔ اور پھر انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن میں کسی قسم کی سستی کوئلی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے، اور حکومت کو وارن کیا ہے کہ پوری دلچسپی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس کیس کو آگے بڑھائیں اور اس کی تہہ تک پہنچیں، ذمہ داروں تک پہنچیں۔ اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو بین الاقوامی انویسٹیگیٹنگ اداروں کی، لوگوں کی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو اس کی مدد بھی وہ لے سکتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ JIT بنائیں، اور پہلی جو JIT بنائی تھی حکومت نے، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اور نئی JIT اپنی ڈائریکشنز کے ساتھ بڑا کلیئرلی واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں انڈیپینڈنٹ سینئر افسران ہونے چاہیے، کسی کے ماتحت نہ ہوں جس کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہو، جس کے خلاف یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہو، آزاد ہوں اور ان کا ایکسپیرینس ہو نیشنل اور انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کے حوالے سے، اور کسی کے دباؤ میں نہ آنے والے دبنگ افسران ہوں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ISI، IB اور باقی ایجنسیز FIA، ان کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے۔ بہت خوبصورت فیصلہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ یہ ایک کیس اگر اپنے انجام کو پہنچ جائے، ان قاتلوں تک پہنچ جائے، وہ جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچ جائے، ان کو کیفر کردار پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، تو یہ پاکستان کی، اس ملک کی، اس قوم کی ایک بہت بڑی جیت ہوگی۔ اور آنے والے وقت میں کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ دوبارہ سے سچ کی آواز کو اس طریقے سے دبایا جائے۔ ایک محب وطن پاکستانی کو، جس کے لیے پاکستان کی زمین اتنی تنگ کی گئی کہ وہ اپنا ملک، اپنی وہ مٹی جس کے لیے وہ ساری زندگی اس نے گزاری ہے، اس کی محبت میں اس کے لیے کاوشیں کرتا رہا، اس کے لیے لڑتا رہا، اس قوم کی آزادی کے لیے لڑتا رہا، یہ زمین بھی اتنی تنگ کی گئی اس کے لیے، اور اس کو آخر کار یہ ملک چھوڑنا پڑا، اور اس کی جان کو ادھر بیرون ملک بھی نہ بخشا گیا، اور بالآخر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ایک انتہائی بھیانک پرتشدد موت اس کا سامنا کیا اس نے۔ نہ جانے اس وقت اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ وہ اپنے ملک کے، اپنے قوم کے لیے کیا کچھ کر رہا تھا، اور پوری قوم نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں اس وقت کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا اگلا جہان اچھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے جیسے سو موٹو تو لیا ہے، لیکن مجھے وہ ایک چیز بھی نہیں بھولتی جو چیف جسٹس آف پاکستان نے
कराची के शहर के एक बड़े अस्पताल में एक छापा मारा था और एक मुलजिम जो वहाँ पे बीमारी का बहाना बना के महीनों से सालों से लेटा हुआ था, उसके कमरे से शराब की 2 बोतलें बरामद की थी और उसी वक्त मीडिया पे उसकी तशहीर हुई थी। लेकिन अफसोस मुझे ये होता है, मुझे चीफ जस्टिस की इस हरकत पे, इस एक्शन पे कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन उन इदारों पे अफसोस होता है कि जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस कदम के साथ कदम मिलाना चाहिए था, उन्होंने वही किया जो एक करप्ट टोले करते हैं, करप्ट माफिया करती है। उन इदारों ने, चाहे उसकी जिसने टेस्टिंग की, उसकी रिपोर्टें बनाई, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया, उन्होंने उस करप्ट माफिया का साथ दिया और उस शराब की बोतलों को जैतून के तेल में और शहद में बदल दिया। ये हमारे हालात हैं इन इदारों के जो करप्ट माफिया के साथ मिले हुए हैं। और आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग केस हो, आपकी नीयत कितनी भी साफ हो, लेकिन जब वो केसेस, वो चीज़ें इन करप्ट अदारों के हत्थे चढ़ जाती हैं तो फिर उसका नतीजा यही होता है, वो शहद भी बन जाता है, वो जैतून का तेल भी बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, उसने गवर्नमेंट को वार्न भी कर दिया, उसने हर तरह की मदद के लिए भी अपनी ऑफर कर दी और उसने ये भी कहा कि अगर कमेटी को किसी किस्म की रुकावट का सामना नजर आए तो वो ज़रूर इसको रिपोर्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी मदद करेगी, लेकिन वो रिपोर्ट कौन करेगा, वो मदद कौन करेगा? यहां पे आके ज़हन जो है वो रुक जाता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम तो है, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम जहां बात अदल इंसाफ की होती है, अगर दुनिया की देख लें, बाकी दुनिया को, तो लगता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अदल इंसाफ पे एक बदनुमा धब्बा भी है। ये धब्बा हमारी अदालतें, हमारे वकला, हमारे वो इंसाफ दिलाने वाले इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वो अदल इंसाफ कब इस अवाम को, कब अरशद शरीफ जैसे मजलूम मकतूलों को कब वो फराहम करने में कामयाब होंगे? क्या इस ताकतवर माफिया का ये लोग मुकाबला कर सकेंगे? क्या इनमें हिम्मत और हौसला है उनका, इस ताकतवर माफिया का जो आए दिन ताकतवर होती जा रही है? आप अगर पिछले 10-20 सालों की बात ले लें तो ये माफिया इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी आज ताकतवर है। और आज तो ये पोजीशन है कि मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है कि कत्ल कीनिया में हुआ है, कल ये हमारे सो कॉल्ड लॉ मेकर्स इस तरह का कानून ही बना दें तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जजेस क्या करेंगे? अगर वो कानून ही ऐसा कर दें कि ये कत्ल तो कीनिया में हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे नहीं हो सकती, इसको इस तरह की सख्त सजा यहाँ पे नहीं दी जा सकती, अब तो ये भी होने में आ रहा है। खैर, इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो में मैं ज़रूर बात करूँगा कि पिछले 35-40 सालों में इस अवाम को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया है और रातों रात जो कुछ भी बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, एक ट्रक की बत्ती के पीछे इस अवाम को लगाए रखा है। रातों रात इन्होंने कैसे उस ट्रक की बत्ती को गायब कर दिया और किस तरीके से उस माफिया को आज़ादियाँ मिलना शुरू हो गई। नाजरीन, ये कोई मुश्किल नहीं है ये साबित करने में कि ARY पे सबसे मकबूल तरीन जो प्रोग्राम था अरशद शरीफ का था, बहुत हाईली रेटिंग, उसको इस प्रोग्राम से हटाने के लिए किसने हुक्म सादर किया? कौन से हाथ इसके पीछे थे कि ARY के उस प्रोग्राम से उसको हटाया गया? और कौन से वो लोग थे जो अरशद शरीफ को थ्रेट करते रहे गुमनाम नंबरों से, हत्ता के जैसे कि उसकी वालदा ने जो FIR में नामजद करने की कोशिश की है और हमारी ये पुलिस की फुर्तियाँ थी कि उन्होंने
उनसे पूछा ही नहीं और FIR दर्ज कर दी, खुद मुद्दई बन गई। वो नाम जो उसके खत के मुताबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने दिया है, वो नाम क्लियरली वो बता रहे हैं कि उनके घर तक आए थे। अरशद शरीफ को उन्होंने थ्रेट किया था कि अगर इस रास्ते से पीछे नहीं हटोगे, इन हरकतों से पीछे नहीं हटोगे, तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। यकीनन सब कुछ उन्होंने अरशद शरीफ पे वाजे कर दिया था, लेकिन वो मर्द का बच्चा, शेर का बच्चा, वो फिर भी पीछे नहीं हटा। इस कौम के लिए वो लड़ता रहा, इस मजलूम कौम के लिए वो लड़ता रहा, वो हक की आवाज़ फिर भी उठाता रहा। ये कोई मुश्किल नहीं होगा कि वो FIRs पाकिस्तान के तूलो अर्ज में किसकी इमा पे काटी गई, उन FIRs के पीछे कौन था, उन FIRs काटने वालों से ये तफ्तीश की जा सकती है कि कौन था उनको कहने वाला कि FIRs इसके खिलाफ काटो और इसको तंग करो, पाकिस्तान की सरजमीन इन पर तंग करो। और फिर जब अरशद शरीफ पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया तो उसको अपने करीबी दोस्तों ने भी यही मशवरा दिया कि इस मुल्क से चले जाओ, शायद तुम्हारी जान बच जाए। वो चला गया। दुबई में भी उसका वीज़ा अभी मौजूद था उसके पास 18-20 दिनों का। तफ्तीश हो सकती है कि कौन उस पर प्रेशर दे रहा था, उस UAE की गवर्नमेंट पे, कि इसको यहाँ से मुल्क बदर किया जाए, इसको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। और उसी नतीजे में वो वहाँ से पाकिस्तान तो नहीं आया, लेकिन कीनिया चला गया, जिसका वीज़ा उसको अवेलेबल हुआ था। और फिर जब उसका मर्डर हुआ, हुकूमती अहदेदारों ने किस तरीके से इस बात को इस तरीके छालने की कोशिश की कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान से इसको बाहर भेजा। उस वक्त वो लोग सोए हुए थे। जब अरशद शरीफ ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी लेटर लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लेटर लिखा, वो लेटर प्राइम मिनिस्टर के पास भी आया, बाकी इदारों के पास भी गया, उसकी कापियाँ बहुत सारी जगहों पे गई, अखबारों में, पूरे मीडिया में वो नशर हुआ। लेकिन उस वक्त ये सब सोए हुए थे, इन्होंने कुछ भी ना किया उस वक्त, और अरशद शरीफ चला गया यहाँ से। और फिर उस माफिया ने अरशद शरीफ का वहाँ पे भी साथ ना छोड़ा, और उन ओहदेदारों ने उन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाया जो मददगार साबित हुए अरशद शरीफ को यहाँ पाकिस्तान से बाहर भेजने में, और उसकी फैमिली को जो मदद करते रहे बाद में भी, और वहाँ पे भी उसकी मदद करते रहे। लेकिन जहाँ पे वो गया, जिन लोगों के पास वो था, वो तो वहाँ की FIR में भी हैं। और फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी बनाई गई थी, उसने भी क्लियरली ये मेंशन किया है कि वो लोग इसमें शामिल हैं। तो उनको क्यों नहीं लाया जाता पाकिस्तान में, उनसे तफ्तीश क्यों नहीं जाती? मुझे उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक JIT नई बनी है, और हुकूमत की JIT जो ख़त्म हुई है, जो उन्होंने एक वैसे ही बना दी थी, वो इसकी तह तक पहुँचेंगे, उनसे तफ्तीश करेंगे। फिर दूसरा सवाल मैं पुलिस से ये करना चाहता हूँ, उसको गोलियाँ लगीं, जब कीनिया की पुलिस ये मान रही है कि वो कत्ल उन्होंने किया है, जब कीनिया की गवर्नमेंट ये मान रही है कि कत्ल उन्होंने किया है, तो नामालूम का क्या मतलब है? उनके नाम क्यों नहीं लिखे गए जिन्होंने गोलियां मारी हैं, जो पुलिस खुद मान रही है, ऑन दी रिकॉर्ड है वो चीज़ें? तो फिर किस चीज़ का नामालूम है? और फिर जब अरशद शरीफ की वालदा वो नाम देती है ताकतवर लोगों के, तो वकील भी उस रास्ते से हट जाते हैं। क्या FIR में किसी का नाम देना ही एक जुर्म है? क्या हम लोगों में इतनी अखलाकी हिम्मत नहीं है कि हम किसी से पूछ सकें, किसी से तफ्तीश कर सकें? भाई आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, आपका नाम है, FIR में उसका नाम आ जाए। हम लोगों में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है। हम नाम के मुसलमान हैं, हम नाम के अदल इंसाफ के नंबरदार हैं। क्या खाक हम इस कौम की खिदमत करेंगे, इस कौम की मदद करेंगे?
इस खाक हम इस कौम को आज़ाद करेंगे। बहरहाल फिर भी एक साहब वकील, उन्होंने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठाई और अरशद शरीफ की वालदा का जो मौक़िफ़ है, जो उनकी एप्लीकेशन है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उस 5 मेंबर बेंच ने बड़े अच्छे तरीके से सुना है और उनको तसल्ली दी है कि वो ज़रूर इसमें पूरी भरपूर कोशिश करेंगे ताकि इसको इसकी तह तक जा सके और जो ज़िम्मेदार हैं इस कत्ल के, उनको कानून के कटहरे में लाया जा सके। इसमें सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जब बात चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलती है तो उस वक्त बहुत सारे इदारे इसमें शामिल हो जाते हैं, बहुत सारी माफिया इसमें शामिल हो जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं जो करप्ट भी हैं, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास ताकत भी है, तो वो इस केस को दबा सकते हैं, इस केस को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए, अरशद शरीफ का कत्ल एक हकीकत है, कत्ल हुआ है, खून बहाया गया है। क्या हमारा अदल इंसाफ का निज़ाम उसकी तह तक पहुंचने में कामयाब होगा? खुदा करे, इसकी दुआ की जा सकती है कि अल्लाह करे कि ये एक केस हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से उन्होंने इस काम की पैरवी शुरू की है, लेट ज़रूर की है लेकिन सही शुरू की है, सही डायरेक्शंस में है। और ये सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए, आवाम को ठंडा करने के लिए नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पूरी नज़र रखनी चाहिए। जो स्पेशल GIT बनाई गई है वो क्या कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस को देखें, उसमें डिले टैक्टिक्स को देखें, कौन डिले कर रहा है और इस केस को ख़राब करने की कौन लोग कोशिश कर रहे हैं। इस केस की तह तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है अगर सिद्ध के दिल से इसकी तफ्तीश की जाए और जो हमारे ज़िम्मेदार हैं अदल इंसाफ के, जिनके पास वो पावर्स हैं और जो इदारे हैं, मैं उन इदारों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस केस में भरपूर मदद करें ताकि हम दुनिया को ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि वाकई हम अदल इंसाफ चाहते हैं। एक नाहक खून बहा, उसको इंसाफ हमने दिलाया है। एक वो माँ जो 2 शहीदों की वालदा है, 3 शहीदों की वारिस है, ये बता सकें अपनी कौम को, दुनिया को बता सकें, दुनिया के मीडिया को ये बता सकें कि ये हमने इंसाफ दिलवाया है। इसको कौम को, इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को यकजान होकर इस केस के पीछे पड़ना चाहिए और जो भी हकीकत है उसको सामने लाना चाहिए। जो माफिया है, जो किरदार हैं इस कत्ल में, उनको कटहरे में लाना चाहिए। और इसमें आपको ये भी बताता चलूँ, लंदन पुलिस भी हरकत में आ गई हुई है, क्योंकि एक तरफ तो कुछ और लोगों पे इल्ज़ाम है, उधर नवाज शरीफ और मरियम पे ये इल्ज़ाम है जो कि उनके अपने ही एक वर्कर ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने यहाँ पे ये सारा मीटिंग करके ये मंसूबा बनाया है और वाकई ये मंसूबाबंदी के तहत ये सारा कुछ हुआ है। इस केस को इस दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, सुप्रीम कोर्ट को ये हिम्मत दे, ताकत दे, जैसे कि अपने नाम से ये वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा यहाँ पे इदारा कोई भी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बड़ा शख्स यहाँ पे अगर कानून, आइन और कानून के हवाले से देखा जाए तो कोई भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हजरात साबित कदम रहेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे और हक़ को सामने लेके आएंगे और कातिलों को काफिले किरदार तक पहुँचाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।